Good afternoon, sir. My extended team of members of Delmates. I extend a very warm welcome to you all on this remarkable afternoon for Delta. On behalf of my team, sir, I extend a very warm welcome and a glad welcome to you to the inaugural episode of Abhivyakti, a thought provoking and a dream of many podcast channel that is coming true today. Today, we embark on the journey of intellectual exploration, artistic expressions, and dialogue delivery. We are honored to have you, sir, as our guest speaker for today. The maiden episode marks the beginning of a remarkable odyssey as Delta is going till today. Sir, I would request you to address us with your enlightening words as it's only a teacher, a guru who makes a simple clay into a precious pottery. And I hope Abhivyakti goes a long way with blessings of teachers like you. थैंक यू सो मच माधव, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और सभी ऑडियंस को, सभी व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा सबसे पहले तो कि टीम डेल्टा का जो ये इनिशिएटिव है कि एनलाइटन करना और मुझे आज इनवाइट करा, मेरी भी ये कोशिश होगी कि अपनी तरफ से जो भी हम इस पॉडकास्ट को वैल्यू दे सकें वो देंगे, और जितना भी ऑडियंस को सिखा सकें उतना सिखा पाएंगे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से और एजुकेशनल जर्नी के थ्रू। और सभी टीम मेंबर्स को, जितने भी हैं टीम डेल्टा को, बहुत बहुत बधाई ये नया इनिशिएटिव शुरू करने के लिए। एंड आई होप बहुत अच्छा चले, आगे भी बहुत सारे इसके एपिसोड्स बहुत सक्सेसफुल हों, और ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। Thank you so much, sir, for your blessings. Before I hand over my virtual mic to my cute heads and the hosts for today, Avinash Kumar Verma and Jagriti Jaiswal. Sir, I would like to tell you that these students are actually members of the society, has joined as freshers clearing CUET very soon, and they are welcome to Delhi University just few months ago only. ओके, ग्रेट। We are very proud of they both these two students that they are coming up today. I hope this goes very good, and actually both of you, we are proud of you. Sir, all over to you. Sahil, you can go ahead. गुड आफ्टरनून। Hello and welcome everyone to the maiden episode of Abhivakti, the podcast series orchestrated by Delta, the Articulation Society of Shahid Bhagat Singh College, where we explore the fascinating world of education, wisdom, and learning. So today, we're going to dive into one of the top educators of India, CA Parag Gupta, and uncover the stories, insights, and knowledge that will leave us inspired and motivated. I'm Avinash Kumar Verma, together with Jagriti Jaiswal, hosts for today's podcast. We'll together embark on a journey of discovery and enlightenment. We are delving into the life and career of a remarkable individual. C.A. Parag Gupta, Sir, is not just a chartered accountant, but a visionary in the world of finance and education. Sir is a first-class graduate of honors in Bachelor's of Commerce from University of Delhi, alumnus of the prestigious Hansraj College. Sir had been graduated as one of the top scorers in mathematics, accountancy, and financial management at university level. Adding to his academic proficiency, Sir has achieved the CA designation in 2009 at a mere age of 21 years and is currently an associate member of the ICAI board. And I, being a commerce student and a CA aspirant, feel proud and blessed to host this podcast. We are honored to have you as our guest speaker for today, sir. It is my pleasure to invite you, sir, to enlighten us. थैंक यू सो मच अविनाश एंड जागृति, और इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने मुझे यहाँ इनवाइट करा इस पॉडकास्ट पे, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि इसमें हम जितना भी वैल्यू एडिशन दे सके हमारे व्यूअर्स को उतना दे पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। To familiarize our listeners to the topic of today, having the best lines I can recall, that is, where there is a will, there is a way. After every November, there is a May.
So we open the floor to the topic beyond the balance sheet, soft skills for CAs. So now, without further ado, let's dive into the podcast with you, sir. We would request you, sir, to kindly share about your journey of being a CA, as it is a question of many. How at 21? ओके, सो बेसिकली मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई क्लास 12 के बाद, जैसा सब सीए एस्पायरेंट्स की रहती है वैसे ही स्टार्ट हुई। एंड क्लास 12 के बाद जो हमारे 3 लेवल्स होते हैं सीए एग्ज़ाम्स के, जिसको अभी फाउंडेशन, इंटर एंड सीए फाइनल बोलते हैं। तो बेसिकली जब हमारे टाइम पर ये स्कीम होती थी तो 4 साल के अंदर हम वो स्कीम के तीनों ही लेवल्स के एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल हुआ करते थे। हालाँकि उसमें बहुत सारे बच्चे इसको मुश्किल मानते थे और मेरे को भी बहुत टफ कहा गया था, और मुझे भी लगता था कि वाक़ई में 4 साल में 3 लेवल्स के एग्ज़ाम देने हैं और इतने सारे पेपर्स को पढ़ना पड़ेगा। बट वो ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, पहले लेवल 1 देखा, फिर लेवल 2 देखा, लेवल 3 में जब पहुँचे तो उसकी प्रिपरेशन करी। तो कह सकते हैं कि वो बाय गॉड ग्रेस 21 ईयर्स में सीए क्रैक हो गया, क्योंकि सारे ही लेवल्स मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते चले गए। और जो मिनिमम टाइम या मिनिमम ड्यूरेशन आईसीआई अलाउ करता था, उसी के अंदर मैंने अपने अटेम्प्ट्स दिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सारे ही एग्जाम्स क्लियर कर गया। तो इसीलिए वो एज 21 जो है, वो इस वजह से वो बन गया कि एज 21 में ही पूरा सीए क्लियर हो गया। इवन तो मेरी 1 साल की ट्रेनिंग सीए बनने के बाद जो पेंडिंग थी वो मैंने कंप्लीट करी थी। So, as you have cleared CA in first attempt, and it really requires dedication and determination at its peak. So, sir, do you think building a CA is an isolated journey, or one can have a social and study life balance? As being isolated means leads to kind of introvert corner building up. So, sir, what's your perseverance on this? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसका मैं यही बोलना चाहूँगा कि सी एवरी स्टूडेंट इज़ वेरी डिफरेंट। वो किस पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखता है, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बिल्कुल भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो 14 या 16 या 18 घंटे पढ़ाई करता था। तो मैं मानता हूँ कि अगर हमारा पोटेंशियल है इस तरह का कि हम बैलेंस कर सकते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा हम, ऐसा नहीं है कि पूरा सोसाइटी से कट ऑफ ही करना पड़ेगा, और जैसा आपने कहा कि आइसोलेटेड जर्नी, ऐसा नहीं है, थोड़ा-सा मैनेज तो कर सकते हैं। बट हाँ, डेफ़िनिटली एग्ज़ाम टाइम जो होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। ख़ासकर एग्ज़ाम से पहले के जो 2 महीने होते हैं, उसमें ऑब्वियसली हम सब कुछ कट ऑफ कर लेते हैं और हो भी जाता है, और बिल्कुल हम वो आइसोलेशन में आ जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, मन नहीं करता है, और इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनसे भी बात करने का कई बार मन नहीं करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सीए की जर्नी में ये तो है कि बीच-बीच में ऐसे हमें कट ऑफ्स लेने पड़ते हैं, सोसाइटी से, सोशल मीडिया से, और वो जर्नी कई बार ऐसा लगता है, हम आपस में दोस्त जो थे वो बोलते भी थे कि ये बिल्कुल साधु वाली ज़िंदगी हो जाती है, तो ये फैक्ट है। लेकिन अगर टोटैलिटी में होलसम देखें तो इसको मैनेज किया जा सकता है। कुछ ना कुछ हमारे को अपनी एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना कि सिर्फ आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ वो कर रहे हो। कुछ आधा घंटा, 1 घंटा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, दोस्तों से बातें करना या पेरेंट्स से अपनी फीलिंग्स शेयर करना, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। Thank you so much, sir, for presenting your views. Sir, as we all know, the journey of a student during articleship from the Big Fours or a consulting firm while managing studies and job together is a hectic task. What do you think is the role of public speaking in this regard? Role of public speaking. Sorry, role of public speaking in? What is the role of public speaking in this regard? Managing office and training and studies. Yes, sir. ओके, मैं जैसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं ट्रेनिंग पे जाता था और सीए फाइनल की हम लोग अपनी प्रिपरेशन करते थे, तो हमारा जो ऑफिस टाइम होता था, हम 10 बजे हमें ऑफिस पहुँचना होता था और 7 बजे हमारा ऑफिस ख़त्म होता था। अब क्लासेस लेनी और तैयारी करने का जो हमें टाइम मिलता था, या तो वो मॉर्निंग में 10 बजे से पहले हम करते थे, या फिर नाइट में जब हम 7, साढ़े 7, 8 बजे घर आते थे, उस समय करना पड़ता था। और उस समय कोई ऐसा ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल नहीं होता था। तो जो आप कह रहे हो कि
जो फाइनल स्टेज होता है वो सबसे क्रूशल होता है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आर्टिकलशिप चल रही है एंड साथ ही साथ हमको अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करना होता है। तो उस समय सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑफिस के साथ साथ अपनी कुछ ना कुछ स्टडीज को जरूर करते रहें। और लास्ट के जो 3 या 4 मंथ्स का हमें ऑफिस से पूरा ऑफ मिलता है, छुट्टी मिलती है, उसमें हमें अपना सारा सिलेबस एक बार तो जरूर अच्छे से रिवाइज करना पड़ता है। तो आई वुड से कि ये उस समय बहुत ज्यादा जगलिंग तो रहती है, ऑफिस एंड पढ़ाई, बट वो मैनेज करना उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। Thank you, sir, for answering about on this opinion. I also wanted to ask about that only. So, sir, one thing I want to ask you that the failure is really dark for many in life, and it really moves a person to someone new and strong. So, sir, what's your take on communication barriers that builds between an aspirant and his family after falling by aggregates or falling subjects? ये वाकई में एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि सीए के अंदर जैसा आप जानते हैं पासिंग परसेंटेज बहुत लिमिटेड रहता है। अब होता क्या है कि अगर एक स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम दे रहा है तो वो बहुत एक शिद्दत से लगन से देता है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि उससे पहले कभी भी उसके पास फेलियर का टैग नहीं होता उसको, क्योंकि 12th तक सारी चीज़ें ऐसा होता है कि पास तो हम हो ही जाते हैं, फाइट होती है 80 90 100s की। अब सीए के अंदर आने के बाद जब मेहनत भी ज्यादा करी, तैयारी भी ज्यादा करी, और एट द एंड रिजल्ट आता है कि फेल हो गए, तो वो एक सबसे पहले वो शॉक लगता है, सबसे पहले झटका लगता है। तो मैंने इतने स्टूडेंट्स को देखा है 2-3 दिन उन्हें ये बिलीव ही नहीं हो पाता कि हम फेल हुए, और फिर ऑब्वियसली ऐसे में वो एक डिप्रेशन सा आ जाना और डीमोटिवेट हो जाना। और खासकर जो आपने बोला कि हम अपनी फैमिली को भी फिर इन्वॉल्व नहीं करते, हमें ऐसा डर लगता है कि पता नहीं पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगी, क्या वो हमसे नाराज हो जाएंगे। बट मेरा ये मानना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए, खुलकर अपने फैमिली को बताना चाहिए, उनको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए। एक छोटा सा मैं अपना किस्सा भी बताता हूँ। सीए फाइनल का जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा पहला ही पेपर बहुत खराब हुआ था, और मुझे बिल्कुल ये फीलिंग थी कि मैं इसमें पास नहीं होगा। बट मैं जब घर आया तो मैंने रो रहा था, तो मैंने अपना पूरा मन हल्का कर लिया, पापा को, मम्मी को, सबको बोल दिया कि मेरे से नहीं होगा, मैं सीए नहीं बन पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे वहां पर थोड़ा बगअप करा कि कोई बात नहीं, बिना टेंशन दिए अगले एग्जाम दे दो, जो होगा देखा जाएगा, चिंता मत करो। तो जब हम फैमिली की ये छोटी सी बात भी सुनते हैं, वो सपोर्ट मिलता है, तो उससे हमें पुश मिलता है। तो स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर फेलियर का आपको एक एक्सपीरियंस होता भी है सीए की जर्नी में, तो वो लाइफ में आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप फेलियर देख चुके हो, आगे जाकर आपको हमेशा उस फेलियर को डील करना आता होगा पहले से। और दूसरी चीज, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली से बात करते रहना चाहिए, फैमिली को अपनी फीलिंग शेयर करते रहनी चाहिए, उससे हमेशा एक स्ट्रेंथ बन जाती है। Thank you so much, sir, for your motivating words. Sir, in your opinion, what are the essential skills and qualities for becoming a successful CA? And how can the CA aspirants develop these attributes? हमारे टाइम पर एक कहावत होती थी, हमारे सीनियर्स हमें कहते थे कि सीए तो कोई भी बन जाएगा, पर अच्छा सीए बनना मुश्किल है। तो तब हम पढ़ाई करते थे तो हम सोचते थे कि ये क्या बेकार की बात बोल रहे हैं कि सीए तो कोई भी बन जाएगा, पहले सीए बन जाते हैं फिर बाद में सोचेंगे कि क्या है। बट वो फैक्ट है कि सीए वाकई में आप बन जाओगे, लेकिन एक अच्छा सीए बनना वाकई में चैलेंजिंग टास्क है। अब अच्छा सीए बनने का मतलब एग्जैक्टली यही पॉइंट जो आपने भी क्वेश्चन में पूछा, कि हम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, बुक्स पर ध्यान दे रहे हैं, बुक्स की चीजें रट के जा रहे हैं, लेकिन जो आजकल हमें कह सकते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स हो गए, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, या इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब कंपनीज किसी को भी हायर करती हैं, पैसे देती हैं, बड़ा बड़ा पैकेज देती हैं, तो वो सीए की डिग्री की वजह से नहीं देती, वो उस इंसान के वैल्यू की वजह से देते हैं कि इस इंसान में कितना पोटेंशियल है, मैन मैनेजमेंट ये कितना अच्छे से कर सकता है, अपनी बात को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है, बोल सकता है, सॉफ्ट स्किल्स भी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आने चाहिए। तो आईसीआई भी इसको लेकर काफी सजग है और काफी चीजें वो बच्चों को करवाता भी है। पर मेरा सजेशन ये है कि बच्चों को खुद से भी, अगर कहीं और से भी इन सब चीजों को अगर सीखना हो, स्किल डेवलप करना हो, इन सब चीजों को और ग्रूम करना हो, तो डेफिनेटली करना चाहिए। और इसका सबसे बेस्ट जो टाइम है वो आपका ड्यूरिंग योर सीए फाउंडेशन और सीए इंटर बेस्ट होता है, क्योंकि तब आपका ऑफिस भी नहीं है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली हम फ्री होते हैं, और उस समय जो ग्रूम करते हैं हम अपने आप को, चीजें सीखते हैं, वो आगे लॉन्ग टर्म तक बहुत हेल्पफुल रहती है।
Thank you, sir. We will definitely try to put this particular thing on a high esteem. So, sir, what do you feel is the most rewarding part of being a CA, and how does it impact the life of a person, professionally as well as personally? प्रोफेशनली आई वुड से कि ऑब्वियसली जो सबका शुरू में एम सीए करने का यही होता है कि हम एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने लिए बना सकें, तो प्रोफेशनली डेफिनेटली वो एक आपको माइलस्टोन मिलता है जब आप सीए क्लियर करते हैं, सीए का टैग लगता है, एंड इन केस यू क्रैक सम गुड कंपनी तो आपको अच्छा पैकेज ऑफर होता है, और प्रोफेशनली यू विल ग्रो। और उसके बाद सीए के बाद अगर आपका काम अच्छा है, आप अपनी फर्म करते हैं, देन ऑल्सो यू कैन ग्रो। और पर्सनली बोलूं तो पर्सनली तो बहुत मेजर चेंज आ जाता है एकदम से, जैसे ही सीए का रिजल्ट आता है और आप सीए बनते हैं, नाम के आगे सीए शब्द लगता है, तो लोगों का नजरिया बदल जाता है एकदम से। आपको लगेगा उनके टोन में जो इज्जत है वो आ जाती है। मुझे बिल्कुल याद है अभी अपना किस्सा इसमें, क्योंकि जैसे मैंने 21 ईयर्स में करा, तो जब मेरे गली मोहल्ले के जो भी मेरे दोस्त यार और दोस्त के दोस्त दूर दूर के लोग जो मुझे भाई भाई करके बुलाते थे, ए भाई ये क्या है वो क्या है, जैसे ही उन्हें पता चला अरे ये तो सीए, तो आपस में बातें करते थे, अरे भाई भाई नहीं भैया बोलो यार, ये भैया सीए हो गए, भैया सीए हो गए। तो सीए बनते ही आपको पर्सनल लेवल पर भी और प्रोफेशनल लेवल पर भी बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, और जो पॉजिटिव साइड पर ही होते हैं ऑब्वियसली। तो आई वुड से कि वर्थ इट है। Thank you so much, sir, for your inspiring words. Moving forward, I feel that a lot of aspirants believe that the struggle of study is only till you qualify for CA. In your opinion, what is the power of influencing and updating oneself for an aspirant after becoming a CA? Absolutely. रियल चैलेंज बिगिंस आफ्टर यू बिकम सीए बेसिकली, क्योंकि जब हम सीए कर रहे होते हैं उस समय सिर्फ हमें लगता है कि बस मैं सीए बन जाऊं, एक बार सीए बन जाऊंगा तो बस फिर जिंदगी भर ऐश होगी। बट द मोमेंट यू बिकम सीए, जैसे ही आप सीए बनते हो उसके बाद देन यू पुट योर फर्स्ट फीट टू द प्लेसमेंट सेल, जब जाते हो आप और वहां पर देखते हो इतने सारे सीए ऑलरेडी हैं, इतने सारे सीनियर्स ऑलरेडी हैं जो आपसे बेहतर भी हैं, आपसे अच्छा बोल भी रहे हैं, आपसे अच्छा दिख भी रहे हैं, आपसे अच्छा एक्सपीरियंस भी है, आपसे अच्छे मार्क्स भी हैं, आपसे अच्छी रैंक भी है। देन वी गॉट टू नो कि ये तो मतलब अभी तो जर्नी यहाँ से फाइट शुरू करनी है, यहाँ से तो कंपटीशन हमको शुरू करना है। तो सिर्फ सीए बनना ही मैं बोलूंगा, वही जो आपने पूछा कि एंड नहीं है, एग्जैक्ट कंपटीशन और एग्जैक्ट हमारा जर्नी तो उसके बाद ही स्टार्ट होती है। ये चीज मैंने भी फील करी थी ऑब्वियसली, एंड उसके लिए जो हमने शुरू में बोला कि अपने कम्युनिकेशन पर, अपने एक्स्ट्रा स्किल्स पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। और सीए बनने के बाद भी चैलेंजेस चलते रहते हैं और अपडेशन बहुत ज़रूरी है। मैं इसका एक आपको भी एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल देता हूँ। जो हमारे टाइम के मेरे दो दोस्त यार प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वी ऑल यूज्ड टू स्टडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमारे टाइम पे वो होता था। नाउ दे बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फर्म्स चला रहे हैं, बट नाउ इंड एएस इज यू नो वो फॉलो होता है। तो दे आर ऑल्सो अपडेटिंग देमसेल्व्स, उनको अभी भी पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट बदल गई हैं। तो अपडेशन तो रेगुलर करते रहना पड़ता है, और सीए के अंदर तो आई वुड से कि एक नेवर एंडिंग, ये कह सकते हैं कि वो चैलेंजिंग रोलर कोस्टर है जो चलता ही रहेगा। तो पहले सीए बनने के लिए हमको फाइट करनी है, फिर सीए बनने के बाद भी लगातार फाइट करनी है, अच्छा करते रहना है, तभी फिर हम कंपटीशन में आउटस्टैंड कर पाते हैं। Thank you, sir. That was really an impressive opinion of yours. Sir, could you describe a challenging or kind of pivotal moment in your career where you really had made a significant decision, and how did it shape your growth? डिसीजन, मेजर डिसीजन आई वुड से जो मेरी लाइफ में था, ऑब्वियसली व्हेन आई क्लियर्ड माय सीए आई गॉट प्लेस्ड इन आईसीआईसीआई बैंक, एंड माय पैकेज वाज आल्सो वेरी गुड, इट वाज 12 लाख पर एनम एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम। सो जो मेजर डिसीजन मुझे लेना था, वहां पर बैंक में मैं बैठता था, मैं रोज बैंक में ऑफिस में जाता था, रोज ऑफिस में बैठ के मैं मनी मन अपने आप को ये कोसता रहता था कि ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे कुछ अपना काम करना है। एंड आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग, मुझे पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, मुझे अभी तक याद है, क्योंकि जब इंसान इस स्टेज में होता है ना, जब उसको समझ नहीं आता क्या करें, क्या सही है क्या गलत, तो वो इंट्रोस्पेक्ट करता है, अपने आप से क्वेश्चन पूछता रहता है। तो मैं अपने आप से 2 क्वेश्चंस पूछता था। मैं पूछता था कि अगर कोई मुझे करोड़ों रुपए दे तो क्या मैं ये नौकरी कर सकता हूँ?
तो मेरे अंदर से आंसर आता था नो, कि नहीं कर सकता। मैं दूसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछता था कि अगर कोई मुझे बोले कि फ्री में इन बच्चों को पढ़ाना है तो क्या मैं वो काम कर सकता हूँ? तो मेरे अंदर से आंसर आता था यस, मैं ये कर सकता हूँ। तो वो चीज जब इतनी हावी हो गई मुझ पे, मेरे विचार इतने हावी हो गए कि भाई मैं तो अब नौकरी नहीं कर सकता हूँ और अब तो मुझको पढ़ाना ही पड़ेगा। तो वो मेरे को डिसीजन लेना था, ऑफिस जाना था, मेरे को वो रिजाइन के बटन पे क्लिक करना था। तो उससे पहले बहुत सारे विचार थे और बहुत सारे लोगों का जो प्रेशर था वो भी था, पेरेंट्स का स्पेशली। उन्हें लगता था कि लाइफ सेट है और ये सब नौकरी छोड़ रहा है इतनी अच्छी। लेकिन वो डिसीजन मैंने लिया और ऑब्वियसली उसके बाद इंटरनली आई वाज वेरी हैप्पी कि ठीक है, मेरे को जो करने का मन है मैं वो करूंगा। एंड देन साल 1.5 साल के बाद वहां से मेरी ग्रोथ भी होनी शुरू हुई और सब चीजें उसके बाद से स्मूथली अच्छी अच्छी चलने लगी। तो आज तक भी कोई ऐसा मलाल कभी हुआ नहीं कि वो डिसीजन क्यों लिया। तो बट दैट वाज अ वेरी मेजर डिसीजन, बट होपफुली वो सही साबित हुआ। थैंक यू सो मच सर फॉर प्रेजेंटिंग अ ब्रॉडर व्यू। सर, जैसा कि आपने मेंशन किया है कि आपकी जर्नी चेंज हुई, यू क्वालिफाइड सीए और अब आप एक एजुकेटर भी हो, एक एसोसिएट मेंबर भी हो आईसीएआई बोर्ड में। तो आप अपनी जर्नी के बारे में हमें थोड़ा और डिटेल में बताएं कि आपके करियर में आपके क्या क्या माइलस्टोन्स थे और सीए बनने से लेके अब तक आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनैलिटी में जितने भी चेंजेस आपने देखे। सीए बनने के बाद जो माइलस्टोन्स, तो अब वो कहते हैं ना, वो हिंदी में कहावत है कि भाई हम तो चलते रहते हैं, वो पीछे कारवां जुड़ता रहता है और चीजें होती रहती हैं अपने आप। बट हाँ, एक मेजर जो मुझे पर्सनली एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, वो 26 जुलाई 2013 का दिन है। मतलब 10 साल कंप्लीट हुए हैं मुझे इस साल। तो जब मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, जो उस समय के प्रेसिडेंट मतलब थे, उनसे मिलने का मौका मिला था। और तब मैंने एक किताब लिखी थी। मुझे किताब लिखने का भी शौक था शुरू से। तो मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट करा, सीए बन गया 21-22 साल में, तो 23-24 साल तक आके मैंने किताब भी लिख ली थी खूब सारी 12th की। तो वो मेरी एक सीए इंटरमीडिएट की बुक थी, वो मैंने प्रेजेंट करी और फिर उनसे जो मुलाकात हुई, तो वो मेरे को एक बहुत बड़ा, मतलब मेरे लिए मोटिवेशनल मोमेंट था। और उसके बाद से मतलब वो फोटो देख देख कर मैं खुद ही अपने आप को मोटिवेट करता रहता हूँ। जब भी मेरे को डाउन फीलिंग आती है अभी भी, तो मैं अपने आप को वही फोटो देखकर मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ कि देखो, जब मैंने वो कर लिया, मैं डॉक्टर साहब से मिल चुका हूँ, तो मतलब उन वो पर्सनालिटी और वो चीज़ें खुद ही मोटिवेट कर देती। तो वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। उसके अलावा तो चीज़ें अपने आप होती रही। माइलस्टोन तो मैं क्या बोलूँ, फिर हमने अपना स्टार्ट कर दिया, कोचिंग स्टार्ट कर दी, टीम बन गई एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सब अच्छा अच्छा चल रहा है, टचवुड। एंड पर्सनालिटी में चेंजेस जो मैंने देखे, ऑब्वियसली क्योंकि हम टीचर बन गए, तो अब हमें अपने व्यूज एक्सप्रेस करने हैं, क्योंकि दिन भर हमें बोलना ही बोलना है, बोलना ही बोलना है। तो कुछ चीजें मैंने देखा पर्सनालिटी में ऑटोमेटिकली हमारी ग्रूम हो गई, किस तरह से बोलना है, बच्चे को किस लेवल पर जाकर समझाना है। तो वो चीजें पर्सनालिटी में भी आ गई और पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। नहीं तो पहले हम स्कूल टाइम पे, मुझे याद है, मैं शाई हुआ करता था, किसी भी कंपटीशन, किसी भी स्टेज प्रेजेंटेशन में मैं पार्ट नहीं लेता था। बट वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें भी चेंज हो गई। Thank you, sir, for such an inspiring answer. So, in your opinion, a person who obtains the CA designation in his first attempt itself really holds much more value as compared to people who clear it in multiple attempts. So, should one give up on CA if they are unable to clear it in a specific number of attempts? So, what's your take on this? इस पे मेरे दो ओपिनियंस है, मतलब दो बातें कहूंगा। एक तो ऑब्वियसली जो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं बच्चे एंड मल्टीपल अटेम्प्ट्स में, तो वो जो एक डिस्पैरिटी है वो ऑब्वियसली है। कैंपस प्लेसमेंट में भी कंपनीज ऑफर मच हायर पैकेज टू सिंगल अटेम्प्ट स्टूडेंट रादर देन मल्टीपल अटेम्प्ट स्टूडेंट। ऑल्दो इस पर बहुत से लोगों का कहना है, मेरा भी ये मानना है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट देकर अगर जो सीए बन रहा है, दैट मीन्स वो फेलियर देखकर उसको ओवरकम करके आगे बढ़ा है, तो उसके लिए और ज्यादा करेज और स्ट्रेंथ लगती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया इस ठीक है, पढ़े और पास हो गए, दे हैव नेवर सीन द फेलियर। वो आगे फेलियर देखेंगे तो दे माइट गेट शैटर्ड। बट जो मल्टीपल अटेम्प्ट में सीए बन रहा है, मेरे हिसाब से वो ज्यादा तपकर एक हीरा बन रहा है, सोना बन रहा है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा भी होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। बट एज सच तो नहीं है। बट दूसरी चीज ये जो आपने बोली कि
जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स अगर लगते रहते हैं तो कब हमको छोड़ देना चाहिए या क्या है? तो सी वैसे तो ये पर्सनल डिसीजन है, लेकिन अगर एक जनरल आंसर लेना हो तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि 2 या मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स आपको देने चाहिए। और अगर 3 अटेम्प्ट्स में भी स्कोर बिल्कुल कंसिस्टेंटली लो चल रहा है और आपको लग रहा है कि मैं एफर्ट्स भी डाल रहा हूँ, पर फिर भी मार्क्स नहीं बन रहे, तो फिर हो सकता है कि 3 अटेम्प्ट्स के बाद हम कोई सेकंड अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन देखें, जो हमारे लिए सही हो। बट हैविंग सेड दैट, ये एक पर्सनल ओपिनियन है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 5, 6, 10 अटेम्प्ट दिए, फिर सीए बने एंड दे आर गोइंग डूइंग गुड। तो आई गेस कि ये थोड़ा सा पर्सनल है, बट मेरे ओपिनियन में 3 अटेम्प्ट्स देकर आप सेकंड अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन जरूर देखें, एक्सप्लोर करें। क्या पता अगर यहाँ नहीं हो तो वहां कुछ अच्छा हो जाए। Definitely, sir. Thank you, sir. Sir, Sir, thank you for being the part of this wonderful, wonderful podcast. We're really grateful to get your insights on this topic, and it's been an enlightening journey through to this topic. And most importantly, we found this podcast very thought provoking, as you have encouraged us to continue exploring and learning these ideas in our life. And so, my